Now let us continue with the previous video lecture. So the rule number 7, this is your rule number 7. Hydrogen has the oxidation number of +1. नॉर्मली हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव HCl +1, वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन हियर हाइड्रोजन इज +1. यानी एक हाइड्रोजन का +1 होगा. सो वी हैव 2 हाइड्रोजन, सो टोटली वी हैव +2. बट इन केस ऑफ, हियर आल्सो एक्सेप्शन, in case of metallic hydride, hydrogen is equal to your -1. Means the oxidation number of hydrogen is -1 in case of your metallic hydride. For example, if we write sodium hydrate, this is your sodium hydrate. तो मान लीजिए अगर हम सोडियम हाइड्राइड की बात करते हैं और अगर हमने हाइड्रोजन को +1 कर दिया, देन व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम? -1. ये कभी पॉसिबल है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज सिंपली द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. हियर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी +1. Naturally you can say, okay, then this is not +1, this will be -1. So in case of metallic hydride it is -1. Like sodium hydride, like LiH, lithium hydride, see this is +1, this is -1. Say we write calcium hydride, again -1. तो देखिए ये -1 है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का -1, तो 2 हाइड्रोजन का टोटल -2. सो वी हैव कैल्शियम दैट इज योर +2. सो इन मेटालिक हाइड्राइड द हाइड्रोजन इज योर in metallic hydride the hydrogen had oxidation number -1. Now one more point is there, that is rule number 8. For alkali metal, for group 1 element, that is for alkali metal, the oxidation number is +1. The oxidation number will be always +1. हमेशा +1 होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, always it is your +1. And similarly for alkaline earth metal, it is your +2. जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसके लिए क्या होगा? +2 होगा, चाहे वो आपका बेरिलियम हो, whether it is magnesium, whether it is calcium, strontium and barium, इन सबों में your oxidation number will be +2. तो ये different rules थे that how we calculate the oxidation number of an element. Now I give you some example so that how we can calculate the oxidation number. हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो. So the question is, calculate the oxidation number of number 1 sulfur in H2SO4. तो देखिए सल्फर का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है H2SO4 में. इट मीन्स हमको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए, हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए. यू नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज योर +1 while the oxidation number of oxygen is your -2.
Now we have two hydrogen. We have two hydrogen. So it is +1 into 2. +1 हाइड्रोजन +1 into 2 क्योंकि दो हाइड्रोजन है. Plus suppose x. We may write let the oxidation number of sulfur is equal to x. सपोज करिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x है. So it is +1 into 2 for hydrogen plus x plus oxygen -2. So it is -2 into 4 and the total sum is 0. क्योंकि आप पढ़ चुके हैं the sum of oxidation number of all the elements or all the atoms in a compound is equal to 0. तो ये sum 0 हो गया. So this is 2 plus x minus 8 equal to 0. Therefore we can write x is equal to plus 6. So this is the answer. So if there is no exception, so we apply the simple rule. Now suppose the next question is, or you can say another example, calculate the oxidation number of chromium in K2Cr2O7. You know it is known as your potassium dichromate. Now this compound is made up of three elements. One is your potassium, another is your chromium, and the third is your oxygen. तो potassium is alkali metal, so it is +1. ये chromium I have to find. ये chromium आपको find out करना है. ये chromium आपको निकालना है oxidation number. So let the oxidation number of chromium is x and oxygen that is your normally -2. क्योंकि ऑक्सीजन -1 कब होगा? जब पेरोक्साइड होगा. लगता नहीं है देखने से ये पेरोक्साइड है. ऑक्सीजन -1/2 कब होगा? जब ये सुपर ऑक्साइड होगा. सुपर ऑक्साइड भी नहीं दिख रहा है. तो नेचुरली दिस इज -2. अब इसको पुट करिए. देयर आर 2 पोटेशियम, सो +1 into 2 for 1 potassium +1. So for 2 potassium +1 into 2 plus for 1 chromium x. So for 2 chromium it is 2x plus for 1 oxygen -2. So -2 into 7 and this total sum is 0. अब आप इसको करिए. 2 plus 2x, this is -14 equal to 0. That is 2x minus 12 equal to 0. Therefore your x equal to plus 6. So the correct answer is your plus 6. Now let us see the third example. Let us observe the third example. The third example is calculate the oxidation number of magnesium Mn, manganese in KMnO4. देखिए ये फिर 3 तरह के एलिमेंट से बना है. One is your potassium, another is manganese, another is oxygen. Potassium you know +1, अभी तुरंत देखा हमने. Say manganese is x and oxygen is your -2. So I can write +1 plus x plus -2 into 4 and this is equal to 0. This implies that simply x equal to +7. अब मान लीजिए एक आप आयन लेते हो. Let us write one iron. For example, somebody asks you calculate the oxidation state of phosphorus in phosphate ion PO4 3-. This ion is called your phosphate ion. The answer will be your +5. The answer will be +5. आपको लगेगा कि ये कैसे +5 होगा. Okay. Now this phosphate ion is made up of 2 different element or 2 different type of atom. One is your phosphorus. Let phosphorus is x क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना है. Oxygen it is -2. So we have 1 phosphorus, so 1x means x plus oxygen -2, 4, so into 4
नाउ इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे सम इसका 0 नहीं होगा, 0 होगा तो रॉन्ग हो गया। क्यों? बिकॉज देयर इज 3 माइनस चार्ज ऑन दिस साइन, सो दिस इज इक्वल टू -3, दिस इज इक्वल टू -3, so it is x minus 8 equal to -3, so x is equal to your +5. So this +5 is your oxidation number of phosphorus in phosphate ion. तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं. I hope there should be no problem to understand the different type of examples. Now, what is actually oxidation and reduction in terms of this oxidation number? So the question is, how can we define oxidation and reduction in terms of oxidation number? So the topic I am going to discuss, oxidation and reduction in terms of ON. ON stands for in short oxidation number. हमने कह दिया कि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक ही मानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है एट दिस स्टेज. हाउएवर बेसिकली देयर इज डिफरेंस, बट एट दिस स्टेज हम लोग मान सकते हैं कि ये सेम है. सो what is oxidation? Oxidation is a process. Oxidation is a process in which increase in oxidation number of an element takes place. In which increase in oxidation number, increase in oxidation number of an element takes place. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप देखेंगे कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है. देन दैट प्रोसेस इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन. सो हाउएवर रिडक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस. However, reduction is defined as a process in which decrease in oxidation number, in which decrease in oxidation number, decrease in, क्या देखिए ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां decrease in oxidation number of an element takes place. तो जिसमें decrease in oxidation number हो वो रिडक्शन, जिसमें increase in oxidation number हो वो प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है. Now let us consider examples. अब आप जो एग्जाम्पल्स हैं उस एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल लीजिए. जो रिएक्शन जो आप पहले पढ़े लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट वेरी सिंपल रिएक्शन H2 plus Cl2, say this is your HCl, दिस इज H2 plus Cl2, दिस इज योर HCl. आप जानते हो कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा और इसमें रिडक्शन भी हो रहा. नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस केस? 0, क्योंकि ये फ्री एलिमेंट है. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस केस? दैट इज अगेन 0. एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl +1 एंड क्लोरीन इट इज -1. तो ये हो गया +1 और ये हो गया -1. सो हाइड्रोजन 0 to +1, while chlorine it is 0 to -1. In this case we have increase in oxidation number. It is your
increase in oxidation number. So we can say this process is called oxidation. So in this case, hydrogen is oxidized to your HCl. However, chlorine, whose oxidation number is 0, but here chlorine has oxidation number -1. तो 0 से -1 जाना आप कह सकते थे यहाँ पे आपका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ. एंड व्हाट इज दिस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज योर reduction. So both oxidation and reduction, they takes place simultaneously, and that's why they are called your redox reaction. इसलिए हम लोग इसको redox reaction कहते हैं. Now, if you consider example of your NCERT textbook, मेरे पास NCERT textbook है, इसमें एक सॉल्व एग्जाम्पल है. आइए उस सॉल्व एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं कि ये आखिर एग्जाम्पल आपका क्या है. दिस इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. द प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम नंबर 8.4. यही आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज जस्टिफाई दैट द रिएक्शन 2CU2O प्लस Cu2S, Cu2O सॉलिड स्टेट में है, प्लस Cu2S, ये भी सॉलिड है, सल्फाइड, एंड दिस इज ऑक्साइड. दे कंबाइन टू फॉर्म 6 मोल ऑफ कॉपर सॉलिड प्लस योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ये आपके एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जस्टिफाई द रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन. आप इसको जस्टिफाई करिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एंड आइडेंटिफाई द स्पीशीज व्हिच इज गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हिच इज गेट रिड्यूस्ड. इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए. तो भाई सबसे पहले देखिए कि ये नाउ जस्ट यू कैलकुलेट oxidation number. Now here copper, you know oxygen is -2, oxygen is -2, copper is here +1. ये आप निकाल सकते हैं. Here sulfur is -2, again copper is +1, क्योंकि copper metal है. ये हो गया आपको, ये भी समझ गए. Now here copper is 0. Why copper is 0? Because this copper is free element. The oxidation number of copper in metallic copper is 0. कॉपर मेटल में वो 0 है, यहां पे वो +1 है. अगर देखिए यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता, अगर आप CuO लिखते, नाउ ऑक्सीजन -2, देन दिस कॉपर इज +2, बट इट इज क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O. इट इज योर Cu2O. तो जब आप बुक में पढ़ते हो तो इसीलिए यहां पर आप देखोगे लिखा रहता है इस तरीके से, कॉपर 1 ऑक्साइड. It is written as your copper 1 in Roman, means the oxidation number is your +1. इसको स्टॉप नोटेशन बोलते हैं, बाद में आपको बता देंगे ये. तो कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 सल्फेट, कॉपर +1, here copper 0. So what about copper? भाई कॉपर में क्या हुआ? There is change in oxidation number. क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं होगा, ना तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ना तो वो रिड्यूस होगा. सो यू कैन से इन दिस केस देयर विल बी, चाहे यहां की बात करिए चाहे यहां की बात करिए, इन बोथ द केस देयर इज डिक्रीज इन, यू कैन से देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो दैट प्रोसेस इज योर रिडक्शन. नाउ ये मान लीजिए यहां पे आपका रिडक्शन हो गया. ठीक है भाई, चलिए इसको हमने मिटा दिया. क्यों इसको मिटाया? बिकॉज यहाँ वी हैव टू सी द चेंज इन सल्फर. हियर सल्फर इज -2, ऑक्सीजन अगेन -2, तो ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा. बट हियर सल्फर इज योर +4. सो सल्फर जो यहाँ -2 था, ये इंक्रीज हो करके +4 हो गया. जो सल्फर यहाँ -2 था वो इंक्रीज करके +4 हो गया. तो आप कह सकते हो यहाँ पे इंक्रीज इन
oxidation number. So this process is your reduction. Decrease in oxidation number means reduction, while this process is your oxidation. So it is the justification. यही तो इसका justification हो गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो रहा है. So it is a redox reaction or you can say it is a redox process. अब सवाल उठता है कि इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है? तो कॉपर प्लस जो है, ये कॉपर प्लस कौन रिड्यूस हुआ? Cu+1 get reduced to copper 0 means metallic copper. Copper 0 means metallic copper. And which one is going to be oxidized? Oxidized कौन हो रहा? S2 minus. S2 minus means sulfide ion. S2 minus is sulfide ion. So this sulfide ion get oxidized. तो किस में? S4 प्लस. भाई S4 प्लस किस में है? ये S4 प्लस है आपका सल्फर डाइऑक्साइड में. तो आप कह सकते थे कि this will get reduced while this will get oxidized. Now that's why it is a redox reaction. अब आप देखिएगा, आपको बुक में पढ़े होंगे, पढ़िएगा भी आप. One is your oxidizing agent. मैंने पहले भी बताया. One is your oxidizing agent and another is your reducing agent. One is oxidizing agent, another is your reducing agent. Now oxidizing agent is also called oxidant. In short, oxidizing agent, this oxidizing agent is also called as your ऑक्सीडेंट. इसको हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं. और रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज योर रिडक्टेंट. सो रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज योर रिडक्टेंट. सो नाउ यू ऑब्जर्व, कॉपर प्लस गेट रिड्यूस्ड. भाई कॉपर प्लस आपका रिड्यूस हो रहा है, तो किसने उसको रिड्यूस किया? दिस सल्फाइड आयन ने रिड्यूस किया. किसने रिड्यूस किया? सल्फाइड आयन ने. सो सल्फाइड आयन इज योर रिडक्टेंट. दिस सल्फाइड आयन इज योर रिडक्टेंट. रिडक्टेंट मींस रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्टेंट है. क्यों रिडक्टेंट है? क्योंकि ये कॉपर प्लस को मेटलिक कॉपर में रिड्यूस करता है. तो रिडक्टेंट वो होगा, आप सोचिए, रिडक्टेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा. रिडक्टेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा. यानी ऑक्सीडेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा. सो यू कैन से व्हाट अबाउट दिस? नाउ व्हिच इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड? सल्फाइड आयन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड. तो ये सल्फाइड आयन को किसने ऑक्सीडाइज किया? दिस कॉपर प्लस ने. किसने किया? कॉपर प्लस ने. सो यू कैन सी दिस कॉपर प्लस इज योर ऑक्सीडेंट. सो व्हाट अबाउट दिस कॉपर प्लस? दिस कॉपर प्लस यू कैन से दिस कॉपर प्लस इज योर ऑक्सीडेंट. भाई ये कॉपर प्लस क्या है? तो ऑक्सीडेंट है. ऑक्सीडेंट क्यों है? कोई भी चीज ऑक्सीडेंट कब होगा? जब उसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा. तो ऑक्सीडेंट कब होगा? जब उसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा. सो वी कैन से कॉपर प्लस इज योर ऑक्सीडेंट, while what is sulfide ion, that is your reductant.
और पहले आप पढ़े थे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। वही सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे को रिड्यूस करे। सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. Now let us suppose if I write a reaction of this type. If I write a reaction of this type, कोई भी एक रिएक्शन, सिंपल एक रिएक्शन लिख देते हैं, सपोज करिए बहुत सिंपल रिएक्शन, से दिस इज Mg, दिस इज Cl2, दिस विल बी MgCl2. Now this Mg is your 0, Cl2 0, समझ ही गए, Cl0, दिस इज 2 प्लस, दिस इज -1. यहाँ देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स योर ऑक्सीडेशन. यहाँ देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स योर रिडक्शन. नाउ इन दिस केस which one is reducing agent? Your magnesium is reducing agent, or you can say magnesium is your reductant. Magnesium is your reductant. तो रिडक्टेंट वो होगा जिसमें आपका इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए, जबकि आपका यहाँ पे क्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बिकॉज इट इज गोइंग टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. आई होप it is clear to all of you. Now there should be no confusion. Thank you.